So today we are going to start the same chapter. We are going to continue the same chapter, electoral politics. And in electoral politics, we are on page number 59. Is it good to have a political competition? First paragraph is already over. Now we are going to start with the second paragraph. Now I am requesting any one of you to read. Let it be. Come here and read. Take your book with you. But it is good to have political competition. Yearly an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win election fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. Our constitution makers were aware of this problem, yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in the real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political careers. They want to remain in the power of or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well. But it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decides this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular interval competition provides incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in next election. But if they fall to work to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. Be denied the right to vote, but reserve the constitution. Okay, thank you. Now we were discussing about the political competition. No doubt, democracy. The first step to get into politics is to win the election, to face the election. Now, to face the election, ultimately political competition occurs. जब किसी भी इलेक्शन में पार्ट लेना है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपटीशन होता ही. सो इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन में लोग जीतने के लिए क्या कर लेते हैं, सारे जो ट्रिक्स है, डर्टी ट्रिक्स, वो भी यूज कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, सेल्फ, केवल उनका सेल्फिशनेस उनकी जो शो होती है, और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, जस्ट टू win their election, just to win the seat, they try to do, they use each and every step. So ultimately यहाँ पर ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसी डर्टी ट्रिक्स को अलाउ क्यों करता है, पर
यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं, यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो मेंबर्स होते हैं वही कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उन्हीं को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाता है जिससे कि क्या हो जाता है, वो गलत तरीके से चला जाता है। बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी सेफ, यू कैन से पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी क्लीन। तो अल्टीमेटली वहां पर ये सारी ट्रिक्स यूज होती चली जाती है। एंड अब दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग। और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर उनको लंबे समय तक चलना है तो उनको पॉपुलैरिटी गेन करते रहना होगा। और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, वो काम करने के अलावा बाकी सारी ट्रिक्स यूज करते चले जाते हैं। बट अल्टीमेटली ये भी है कि अगर उनका नॉलेज बढ़ा जाए पॉलिटिशियंस का, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर नॉट सो एजुकेटेड, और अगर उनको एजुकेट किया जाए, अगर उनको ये रियलाइज किया जाए कि इफ यू आर पॉपुलर, पॉपुलैरिटी कैसे, इफ यू आर वर्किंग फॉर द पीपल, इफ यू आर रेजिंग द इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू द पीपल, अल्टीमेटली यू विल बी पॉपुलर एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पॉपुलैरिटी। और अल्टीमेटली उसी से क्या होगा, उनका करियर ग्रोथ, जो पॉलिटिकल करियर है उसमें ग्रोथ आएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन की और भी कुछ बातें की गई है कि अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह, अगर हमारे यहाँ पर ये कमी है हमारे सिस्टम में कि जो ठीक ठाक काम कर रहा है उसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स हो, और जो नहीं कर रहा है उसके लिए कुछ वैसे पनिशेबल पॉइंट्स भी हो, जिससे कि क्या हो सके, जब अगला इलेक्शन आए तो वहां पर क्लियरली विजिबल हो कि ये लास्ट टाइम भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, और इन्होंने कितना काम किया और कितना नहीं किया। तो वो रिवॉर्ड्स को देख के भी लोगों को क्या आए, समझ में आ जाए कि हमको किसको वोट देना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ पॉइंट्स रखे जा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसमें पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स में है लोग, पॉलिटिशियंस, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे क्या उनको रिवॉर्ड्स मिले, और इफ दे आर नॉट डूइंग द वर्क या फिर गलत कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे क्या मिले, उसके कुछ दूसरी रेटिंग्स भी हो, लो रेटिंग वाली, तो जिससे ये समझ में आ जाए कि कौन सा पॉलिटिशियन कितना ज्यादा इफेक्टिव, इफिशिएंट है। पर वहां पर भी क्या होगा, अल्टीमेटली अगर ये सिस्टम भी आता है वहां पर भी पॉलिटिक्स चल जाएगी, और जो जिसने कुछ नहीं किया उसको भी कुछ भी रेटिंग्स मिल जाएगी। तो वहां पर भी इतनी ट्रांसपेरेंसी हो जरूरी नहीं है। तो ये है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने जिससे क्या हो सके, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके, इवेल्युएट किया जा सके। और अल्टीमेटली द पीपल हु आर पॉलिटिशियन, दे try to have a career growth, have a political career which they want to grow। वहाँ पर लोगों से जुड़ी हुई, सेवा से जुड़े हुए, सर्विसिंग जो है होती है वो अल्टीमेटली सेकेंडरी और टर्शियरी पॉइंट चली जाती है। प्राइमरी इज टू गेन द सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस टॉपिक? बिकॉज आप जो शुरू कर रहे थे वो दूसरा ही था। ओके, now we are going to start page number 60, 4.2. What is our system of elections? One student come and read. What is our system of election? Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter, we will focus on general election. Electoral considerations. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did it. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representative. The country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative. Thank you. So
Now the chapter is all about electoral politics. So let us start with the election system of our country, the election system of India. So first of all, for election, to understand the election, हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ elections को कुछ अलग अलग state assemblies या फिर अलग अलग जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा वाले इलेक्शन, उनके बारे में कुछ हम इस पैराग्राफ में रीड करते हैं. द लोकसभा और विधानसभा, सॉरी, let us start from लोकसभा एंड विधानसभा. इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. नो डाउट जो टेन्योर होता है किसी भी इलेक्शन का, वो किसी भी विनिंग कैंडिडेट का, वो कितने साल का होता है, 5 years. आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ 5 years, क्या होता है, फिर से री इलेक्शन होते हैं और फिर क्या होता है, फिर से उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो रिजर्वेशन के बेस पे या फिर अगर रिजर्वेशन नहीं है तो उसके बेस पे कैंडिडेट्स आते हैं. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, और जब तक इलेक्शन अगले नहीं हो जाते, लाइक 5 years का टेन्योर कंप्लीट हो गया और जब इलेक्शन चल रहे होते हैं और अगला कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन के नहीं आ जाता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तब तक लोकसभा या विधानसभा कोई से भी इलेक्शन चल रहे हो उसको डिसॉल्व माना जाता है. Then after that election are held in the constituencies at the same time. लगभग ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम टाइम पे होता है if it is state election, या फिर कभी कभी अभी हम ये भी देखते हैं कि फेजेस में इलेक्शन होते हैं. जैसे पूरे इंडिया, इफ इट इज जनरल इलेक्शन, पूरे इंडिया को क्या आता है, फॉर एग्जांपल 543 सीट्स है तो क्या करेंगे, वो अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे. जैसे 100 सीट्स पे इस पर्टिकुलर आज है तो अगली 100 सीट्स पर 4 दिन बाद फिर अगली 100 सीट्स पर, ऐसे करके वो क्या करते हैं 4 से 5 फेजेस कर देते हैं, चरण. आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में या फिर मीडिया न्यूज़ में कि आज पहले चरण का चुनाव हुआ, उसमें इतने सीटों पर लोगों ने मतदान किया. तो इट इज लाइक कि ये शो करता है कि पर्टिकुलर कुछ सीट्स को क्या करते थे, डिवाइड कर देते पर्टिकुलर एरिया में, ताकि क्या हो सके, प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके. बिकॉज वी हैव अ बिग कंट्री एंड मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हर एक जगह पे इक्वल तो नहीं, एक ही दिन सारा कुछ करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैनेजेबल नहीं हो सकता है. दैट इज व्हाई क्या करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करवाते हैं. और कहीं कहीं पर जैसे स्टेट असेंबलीज जो होती है हमारी, लाइक एमपी, हमारे यहाँ पे ज्यादातर जगह यही होता है कि क्या होता है, एक ही दिन में हो जाता है इफ इट इज मैनेजेबल. एंड बेसिकली इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज. दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. यही जनरल इलेक्शन है. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर few constituencies to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या होता है, केवल कुछ ही सीट्स पर इलेक्शन होते हैं. इट इज वेदर इट इज फॉर स्टेट और फॉर कंट्री. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था एमपी का ही एग्जांपल, जहाँ पर केवल 28 सीट्स पर इलेक्शन था. वो क्यों था, बिकॉज उनके मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट पे, एमएलए की पोस्ट पे. और जब ऐसा रेजिग्नेशन होता है तब क्या होता है, फिर से इलेक्शन होते हैं बिना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किए, क्योंकि जो मेंबर है उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, मतलब वो हट गया अपनी पोस्ट से, तो उसको खाली तो रखा नहीं जा सकता. तो क्या होता है, वहाँ पे फिर से इलेक्शन होता है बिना 5 साल कंप्लीट किए. और इस या फिर एक और कंडीशन है कि वहाँ पर क्या हो जाए, उस मेंबर की डेथ हो जाए जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसकी. और अभी हमने एमपी वाला एग्जाम्पल देखा और अभी हमने और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ पर डेथ हुई है किन्हीं पॉलिटिशियंस की, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है 5 साल का पीरियड कंप्लीट किए बिना. उस इलेक्शन को क्या कहा गया है, बाय इलेक्शन, उपचुनाव. नाउ वन मोर स्टेट इज इन न्यूज नाउअडेज, नॉट स्टेट एग्जैक्टली, यू कैन से यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली गई. which place just yesterday it was in the news, जहाँ की गवर्नमेंट के पास से मेजोरिटी जा रही है. पुडुचेरी इज द प्लेस जहाँ से क्या हो रहा है, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग जो हर स्टेट में होता आ रहा है, कि जो अपोजिशन पार्टी है उसके मेंबर्स के पास मेजोरिटी नहीं, एंड जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल में, ना अल्टीमेटली इट विल फॉर्म द गवर्नमेंट. मतलब हर जगह भी वही वाला सीन रिपीट होता चला जाएगा. एमपी में हो गया, महाराष्ट्र में होते होते बच गया, राजस्थान में भी होते होते बच गया, एंड नाउ द टर्न इज फॉर पुडुचेरी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब क्या होता है, हमने हरियाणा का एग्जांपल देखा था, वहां पर क्या था, टोटल 90 एमएलए थे और जिसके पास 50% से अबो आया, मतलब 51% भी आया तो क्या बना लेता है, गवर्नमेंट बना लेता है.
तो अब आपको लगा होगा कि हर एक पर्सन ने क्या इन 90 एमएलए के लिए वोट किया, या फिर उन्होंने 90 जो सीट्स थी वो किस बेसिस पे डिवाइड की, कैसे क्या किया। अब इस चीज के लिए हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं। इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या होता है, हम पर्टिकुलर एरिया के बेस पर क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं उन सीट्स का। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के ही पर्पस से क्या करते हैं, हम हमारी कंट्री के अलग अलग रीजन्स को डिवाइड कर देते हैं। एंड दिस एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन्हीं एरियाज को क्या कहा गया है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब कि यह है कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, वहां पर डिवीजन का और कोई भी वो नहीं होता मोटिव, इट इज जस्ट फॉर द इलेक्शन, जिससे क्या हो सके, सही तरीके से सीट्स डिवाइड हो सके और उसके बेसिस पे क्या हो सके, गवर्नमेंट बन सके और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। एंड ओनली द पर्सन हु इज अबव 18 कैन वोट, वेदर मैन, विमेन, हैंडीकैप, anyone can. The voters who live in an area elect one representative. And किसी भी एरिया के जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ही अपना वोट दे सकते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कहता तो दोनों जो है कैंडिडेट ठीक लग रहे हैं तो मैं क्या करूँ, दोनों को वोट नो, यू कैन चूज ओनली वन कैंडिडेट। अब फोर्थ, ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ, come, he is not in uniform. For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constitutional constituencies. There is two elected from each constituency in called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a equal population living within it. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called a member of legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constituency has within it several assemblies. Constitutions that same principle applied for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are elected as seats. For each constituency, we represent one seat in the assembly. When we say the Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that the candidate of Lok Sabha Dal won its 60 assembly constituency in the state. Thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. Thank you. So before starting this, you can see here the condition of voters before election and after election. A picture is shown on page number 60. See here, in this picture you can see before election and after election. Before election, the politician is coming and the voter can pressurize them, क्योंकि उनको वोट देने हैं, वोट देने का राइट किसके पास है, वोटर्स के पास। तो वो पॉलिटिशियन को क्या कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है। एंड आफ्टर इलेक्शन मीन्स अब वो जीत चुका है, वो कैंडिडेट, अब वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है, तब जो वोटर होता है उसकी कंडीशन कैसी है, यू कैन सी इन द पिक्चर। जो प्रोमिसेस थे वो कहीं साइड में रह जाते हैं, वो वोटर एक, यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 61 नाउ, लोकसभा इलेक्शन। नो डाउट हमारा जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें क्या है, हम देखते हैं वी हैव 543 सीट्स। अब सीट्स का मतलब वही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब
लोकसभा में जो सीट्स होगी जो जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे इट इज आल्सो 543 एंड उसी के बेस पे क्या होता है लाइक हमारे जो एरियाज डिवाइडेड है उन्हीं के बेस पे वहाँ पर सीट्स भी होती है, तो अल्टीमेटली इसको सीट भी बोल देते हैं लोग, तो वो होता बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वी हैव 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एंड और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इन लोकसभा इलेक्शन को जीतते हैं उनको क्या कहा जाता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन का ये भी है कि हमारा फीचर है सबसे अच्छा कि एवरी वोट हैज वन इक्वल वैल्यू, मतलब कि हर कोई वोट जो देगा उसकी वैल्यू एक ही मानी जाएगी, वेदर इट इज फॉर अ कॉमन पीपल और फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। अब इसी के बेस पे वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन वाले की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है उसमें जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग इक्वल हो। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं हो सकते डिवीजन में, पर ये रहे कि आसपास रहे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी। कहीं लोकसभा में लाइक 1 करोड़ हो गए वोटर्स और किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल 5 लाख आ रहे, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। इट इज लाइक कि वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन मेंटेन करके चलते हैं कि जो डिवीजन हो सीट्स का कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हो सही तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब उसी के जैसे क्या होता है स्टेट्स भी, जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं विधानसभा, उसमें भी क्या होते हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ही और शी इज नोन एज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वहां पर भी ये होता है कि सीट्स जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डिवीजन होता है वो उसी बेस पे होता है कि भाई पॉपुलेशन जो है वो सही हो। अब वो एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एरिया भी पर्टिकुलर मेजरमेंट से चलेगा, नहीं, वो पॉपुलेशन के बेसिकली बेस पे होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दी जाती है। अब आप यही वाला मैप अगर देखें, गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें दिखाई दे रही है, ये मैप आप देख रहे होंगे ऑन द पेज नंबर 61। उसमें आप देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो है मेजरमेंट वो आपको बड़ा दिख रहा होगा, कुछ का छोटा भी दिख रहा होगा, तो ये यही शो करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन constituencies are formed basically. अब each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. अब एक लोकसभा constituency में, for example खरगोन लोकसभा constituency, अब खरगोन लोकसभा constituency में बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा रीजन आता है, तो एक लोकसभा constituency में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, स्टेट असेंबली की सीट्स हो सकती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे खरगोन का एग्जांपल है, खरगोन बड़वानी दोनों इंक्लूडेड है उसमें, और इवन आई थिंक सम पार्ट ऑफ धार इज आल्सो इंक्लूडेड। तो अब उसमें क्या होता है, छोटी छोटी बहुत सारी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती है, लाइक बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट असेंबली भी उसी के अंदर होती है, क्योंकि लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल खरगोन की बात करें, खरगोन की खुद की एक स्टेट असेंबली की सीट है, विधानसभा सीट, उसके अलावा बहुत सारे रीजन है, जैसे एक भगवानपुरा की हो गई, फिर एक इन द सेम वे वी हैव डिफरेंट state assembly constituencies. So सिमिलरली अब बड़वानी की बात करें तो बड़वानी भी लोकसभा खरगोन लोकसभा सीट में ही है। अब उसमें क्या होता है, यू कैन सी बड़वानी की खुद की एक स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देन राजपुर, देन अपार्ट फ्रॉम राजपुर वी हैव मेनी मोर सीट्स लाइक पानसेमल, ऐसे करके सेंधवा। इन दिस वे क्या किया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट असेंबली में डिवाइडेड है एक लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए गुलबर्गा का एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें कितनी सारी स्टेट असेंबली की सीट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मैप में, देयर आर मेनी स्टेट असेंबली सीट्स आर लोकेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन वन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। अब यही वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अप्लाई होता है। वहां पर क्या होता है, पूरे जो विलेज या टाउन है उसको क्या करते हैं, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और उन वार्ड्स के अपने अपने काउंसलर बनते हैं। उसके बाद में पूरा जो एक मेयर होता है या फिर जो सरपंच होता है वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने हरियाणा का एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर 90 सीट्स थी और लोकदल ने क्या किया था, 60 सीट्स जीत के गवर्नमेंट बनाई थी। Now we are going to discuss about some reserved constituencies. अब नो डाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेस पे तो
डिवाइड कर दी जाती है, बट वहां पर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रिजर्वेशन। तो देखते हैं वो क्या होता है। Reserved constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have the required sources, education and contacts to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies will be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently, in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 for the scheduled tribe as of 1 September 2012. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many states, seats in rural and urban local bodies are now reserved for other backward classes as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women categories. Thank you. Okay, the next is reserved constituencies. No doubt we have studied कि जब इलेक्शन के पर्पज से एरिया पूरे कंट्री को कुछ एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, इट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी. नाउ व्हाट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? अब जो हमारे लॉ मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रही थी कमेटी, दे वर वरीड दैट इलेक्शन में ऐसा ना हो कि क्या हो, कुछ सेक्शन जो है वीकर सेक्शन सोसाइटी के, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, एनीथिंग, या फिर इवन जेंडर ऑल्सो, ऐसा ना हो कि कुछ ये जो सेक्शन है सोसाइटी के वो क्या हो जाए, उनको नजरअंदाज कर दिया जाए या फिर उनको क्या कर दिया जाए, उनको चांस ही ना मिले इलेक्शन में या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी विशेष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, कुछ सीट्स रिजर्व कर दी. अब फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया की, तो यू कैन सी इन दिस मैप, अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बिकॉज इट इज द ओल्डर पब्लिकेशन ऑफ द बुक. तो आप अपने पेज नंबर 63 पर देखेंगे, इन दिस मैप यू कैन सी हियर इन दिस मैप different colors, different shades are there. अब वो shades किसके basis पर है? No doubt total 543 seats दिखाई दे रही हैं and it is divided, जो division आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा division, it is constituency. अब जो blank है, white colored, they are general. General मतलब वहाँ से कोई भी लड़ सकता है. General it doesn't mean कि जो लोग general category के हैं वही लोग लड़ेंगे. General means unreserved. यहाँ पर general गलत लिखा है. Basically it is general की जगह unreserved होता है. अनरिजर्व का मतलब है वहां से रिजर्व वाले भी लड़ सकते हैं और अनरिजर्व वाले भी लड़ सकते हैं. इट इज नॉट स्पेसिफिक कि वहां पर केवल जनरल वाले ही लड़े. अब जो थोड़ा ऑरेंज या रेडिश कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज रिजर्व. रिजर्व अब किसके लिए है? वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी. एंड जो ग्रीन कलर है, कलर ध्यान रखना, कलर में वेरी अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन. अगर नया ओल्डर कुछ नया वगैरह कुछ है तो देखें. और रिजर्व जो है ग्रीन कलर्ड वाली, इट इज फॉर एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स.
तो इन लोगों को चांस देने के लिए या फिर जब उनको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इनकी रिजर्व ऐसे लोग जिनको रिजर्वेशन दिया गया लाइक एसटीज और एससीज, तो क्या किया जाता है, उनको उस पर्टिकुलर सीट्स के लिए उस सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है उन पर्टिकुलर लोगों के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर एक नहीं दिया है ओबीसीज के लिए भी एक होता है अलग से रिजर्वेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। नो डाउट जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, वो जनरल में लड़ सकते हैं। मतलब जनरल के लिए टफ कंपटीशन होता है, दो पीपल बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। अब किस प्रोपोर्शन में किया है, वी विल डिस्कस इट। The makers of our constitution thought of a special system of reserved constituency for weaker section. No doubt, some constituencies are reserved for people who belong to STs and some for SCs. In a SC reserved constituency, only someone who belong to, अब ये जो रिजर्वेशन है आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ सीट्स SC के लिए रिजर्व है, कुछ सीट्स ST के लिए, तो वहां पर केवल जो सीट्स ST के लिए रिजर्व है वो वहां पर केवल ST में मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग या कास्ट के लोग नहीं लड़ पाएंगे या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और वो करना चाहेंगे भी तो क्या हो जाएगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नॉमिनेशन फॉर्म। क्योंकि इलेक्शन को में पार्टिसिपेट करने के पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म करना पड़ता है कि भाई मेरे को ये वाली सीट में क्या करना है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, कॉन्टेस्ट करना है। देन जो सीट्स एससी के लिए रिजर्व है, नो डाउट वहां पर केवल एससी का ही कोई क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन इसके अंदर भी एक रिजर्वेशन होता है, यहाँ पर ये मेंशन है या नहीं आई डोंट नो, बट एसटी में भी क्या होता है कि विमेन या मैन, मतलब रिजर्वेशन के अंदर भी डबल रिजर्वेशन होता है कि नो डाउट वहां पर एससी का कोई कैंडिडेट तो रहेगा, पर वो मैन है या विमेन वो भी मैटर करता है, वो भी एक रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप खरगोन की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल सीट तो आई है नो डाउट, पर क्या हो गया है, वुमन के लिए रिजर्व है अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो किसी अभी जो नेक्स्ट आपकी जो बनेगी वो कोई विमेन बनने वाली। हाँ अब हाँ लोकसभा की बात करें, लोकसभा सीट तो वो एसटी और एससी आई एम नॉट श्योर, वो इन दोनों में से कोई सा एक है वो, इसलिए हमारी जो खरगोन जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी रिजर्व है, आइदर फॉर एसटी और एससी, आई फॉरगॉट एग्जैक्ट पॉइंट, बट वो भी रिजर्व है। जनरल कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर लोकसभा। पर ये जरूर हो सकता है अगर वहां पर एसटी या एससी कैंडिडेट का है तो वहां पर विमेन भी हो सकती है, मतलब जहां पर विमेन के लिए स्पेसिफिक है वहां पर तो केवल वुमन ही होगी, पर जहां पर स्पेसिफिक नहीं है कोई भी हो सकता है, तो एक मैन के सामने एक वुमन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अभी कहाँ का एग्जांपल देखा होगा जहां पर अमेठी का मान लो एग्जांपल, राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी थी, यहाँ पर कोई ऐसा था नहीं कि केवल मैन दो मैन ही लड़े, तो वो क्या थी, ऐसी सीट वो थी कि वहाँ पर दोनों में से कोई भी मैन या वुमन कोई भी हो सकता है। अभी हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए, हमारी एक पांचेमल सीट है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी एक वुमन थी, एक सामने स्टेट असेंबली के लिए, वहाँ पर सामने एक उसके जो कॉन्टेस्ट कर रहा था वो जेंट मैन था। तो ऐसे करके जहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि मैन होगा या वुमन, वहाँ पर दोनों एक कोई भी हो सकता है, वन मैन वन वुमन। ओके, सो अब बात करें अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन हियर, हो सकता है अभी करेंटली ये नंबर चेंज हो गए हैं। Those who belonging to scheduled caste and constituency for currently in the Lok Sabha 79 seats are reserved for scheduled caste and 41 for tribes। देखो 79 और 41 के रेशो में SC और ST के बीच में क्या है रिस्पेक्टिवली सीट्स को रिजर्व किया हुआ है। अब दिस नंबर इज इन द प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। देखो ये रिजर्वेशन कब होता है, जब पॉपुलेशन में क्या हो, उन पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ज्यादा हो। मतलब ये क्या शो करता है कि खरगोन कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटी या फिर एससी की जो है कैंडिडेट्स, वो बहुत कैंडिडेट्स नहीं वोटर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या कर दिया है, इनको रिजर्व कर दिया।
मतलब जहाँ पर इनकी कैटेगरी कम होगी वहाँ पर दूसरे लोगों को भी चांस मिल सकता है, या फिर बहुत ड्यूरेशन के बाद में चांस मिलता है रिजर्व होने के बाद में। कुछ कुछ ऐसे इलेक्शन होते हैं जहाँ पर परमानेंट रिजर्वेशन नहीं होता है, हर बार बदल जाता है। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level, और यही वाला रिजर्वेशन अब डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल के इलेक्शन में भी आपको दिखाई देता है, जैसे हमारा भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होने वाला है, या फिर पंचायत चुनाव जो होते हैं वहां पर भी रिजर्वेशन होता है कि भाई ये जो इस बार की जो सीट है सरपंच की, वो क्या होगा, कोई एससी वाला उम्मीदवार लड़ेगा कैंडिडेट, एंड वो भी क्या हो, वुमन हो, फीमेल कैंडिडेट, ऐसा करके भी क्या रिजर्वेशन के अंदर भी एक और रिजर्वेशन होता है, डबल रिजर्वेशन। एंड नो डाउट ओबीसीज के लिए भी होता है, जो इसमें मेंशन इन्होंने अभी नहीं किया, पर अभी वो भी आएगा। However, the proportion of seats reserved varies from the state to state. अब नो डाउट ये प्रोपोर्शन क्या होता है, स्टेट के बेस पे भी बदलता जाता है। अगर स्टेट की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, किस कैटेगरी, उसके बेसिस पे। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidate. और अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें, लाइक पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, इन सब की, तो वहाँ पर 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया है जेंडर के बेसिस पे विमेन कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए, ताकि उनको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का चांस मिले। वैसे ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिकली होता क्या है, नो डाउट जीतती एक वुमन है, पर काम एक्चुअल में उनके हस्बैंड ही संभाल रहे होते हैं, या फिर अगर वो थोड़ी एजेड है तो उनके बेटे। दिस इज द रियलिटी। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट बेंच। Voters list. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who I have one more period. and who cannot vote. This system cannot be left to anyone till the last day. In the democratic elections, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as voters list. This is important step for ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर लिस्ट। हम कुछ पॉइंट देखते हैं, बेसिक पॉइंट, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड हो गई या डिसाइड हो गई, देन व्हाट विल हैपन, उसके पहले ये काम शुरू हो जाता है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम ऐड होगा। वोटर लिस्ट में नाम ऐड है मतलब कि आप वोट दे सकते हैं। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, केवल वही वोट दे सकता है जो एलिजिबल हो। एलिजिबल कौन है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, एंड इसी लिस्ट को क्या कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में, इलेक्टोरल रोल। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।